Hello friends, my name is Lokesh Solanki and welcome to our beautiful channel Physics Lover. We are going to start our third chapter, Current Electricity. अभी तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में whenever the charge is at rest then what happen? उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है, electric potential, and there are so many things we already discussed. Now we are discussing when the charge is in motion, when the charge is moving in a particular conductor. जब चार्ज क्या होगा? किसी कंडक्टर से फ्लो होगा, उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? What is electric current? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? How to define electric current? And in conductor, which particle is required? Which particle is responsible for electric current? Diodes में कौन से particle responsible होते हैं? So we will discuss in this chapter. हम यहाँ पर बात करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ सेकंड रूल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, mobility, and there are so many things. So we are going to start our new chapter, current electricity. So are you ready for that? Okay, चले start करते हैं. Current electricity, current electricity. Chapter number 3rd. So what about the current? करंट क्या होता है? तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट generally we know that the electric current is a flow of charges, flow of positive charge from any conductor at particular time t. उससे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम किससे? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम एनी कंडक्टर. एनी कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट. उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. कि जितने चार्जेस किसी कंडक्टर से क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं. बिकॉज द कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने देता है. उसमें देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वी कैन आल्सो से दैट कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. It is the rate of flow of electric charges. Rate of flow of electric charges is also known as the electric current. Means we can say that if I is amount of current, then charge per unit time is equal to electric current. Charge per unit time is equal to electric current. Means the total number of charges is flowing total given interval of time is known as the electric current. Okay? Any doubt? तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट कि कितने टाइम में कितने चार्जेस क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं. ओके, हाउ मेनी चार्जेस आर फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, ठीक है. तो किसी भी कंडक्टर में चार्जेस को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए. विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज कैन नॉट फ्लो. ओके, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज फ्लो नहीं होंगे. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी.
It is the scalar quantity and its SI unit, SI unit जो होती है इसकी, ये होती है चार्ज के I is equal to coulomb per second. Coulomb per second, it is also known as the ampere. Okay, so SI unit is ampere. So the SI unit of current is equal to the ampere. SI unit क्या होती है इसकी? एम्पियर होती है. ओके, सो नोट डाउन इलेक्ट्रिक करंट, लिख लें आप इसे. राइट डाउन करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है, हो गया. ओके, नेक्स्ट. So we know that I is equal to Q upon T. I is equal to Q upon T. ठीक है, I is equal to Q upon T. We know that according to quantization of charge, first chapter, Q is equal to N into E. Q is equal to N into E. Then the charge current is equal to Ne upon T. That is the another formula of current. ये क्या होगा? Another formula होगा in terms of electron. In terms of electrons, we can easily find out the number of electrons in 1 ampere of current. कि 1 एम्पियर ऑफ करंट में 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्लो होंगे. क्वेश्चन है फाइंड number of electron in 1 ampere current at 1 second. 1 सेकेंड में 1 एम्पियर ऑफ करंट से हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो? तो I is equal to 1 ampere and we are finding E is equal to 1.6 10 to the power minus 19 upon 1. So N is equal to 1 upon 1.6 10 to the power minus 19. So it is equal to 6.25 into 10 to the power 28. So the total number of electron is flowing through any total number of electron is flowing through a conductor whose current is 1 ampere and the time is 1 second. जब टाइम 1 सेकेंड होगा और करंट क्या होगा? 1 एम्पियर होगा. So the total number of electrons are 6.25 into 10 to the power 28. 6.25 into 10 to the power 28. So that is the number of electron. Okay. So that is, इसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. So we can easily find the number of electrons also. Okay. Now the current density. अब हम बात करें कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स. What about the direction of electric current? Direction of electric current. Okay, this is our conductor. ये हमारा कंडक्टर है. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इसे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं. इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, मींस दिस A and B. ये जो A टर्मिनल है, इट इज अ हाई पोटेंशियल. ये किस पे है? हाई पोटेंशियल. तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे. When electric potential या electric field is applied at the end of the conductors, electric field is applied. ये electric field हो गई applied at the end of the conductor, then the electrons flows in a particular direction. Electrons क्या होते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होते हैं. But charges flows from the positive terminal to negative terminal. चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही
मूव करते हैं. ओके, सो द डायरेक्शन of electric charges is the direction of current. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी. ओके, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, बट the direction of electron is opposite to the electric current. इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है. किससे, इलेक्ट्रिक करंट से. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन is opposite to the direction of electric current. Okay, so the direction of electron is the opposite of the direction of electric current. इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होती है किससे, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन से. ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, नोट डाउन, लिख लिया. चलो, whenever you are writing notes, pause the video and write down. ओके, वीडियो को पॉज कर ले और लिख ले. अब हम बात करें इंस्टेंटेनियस करंट की. किस करंट की, इंस्टेंटेनियस करंट. बिकॉज समटाइम इंस्टेंटेनियस current, okay, let at time, small time, हम क्या मान रहे हैं, let a small time dt, small amount of charge is flowing, small amount of charge is flowing through the conductor, flowing through the conductor. Then electric current, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, when at a small time dt, बहुत कम टाइम के लिए स्मॉल चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq is flowing through the conductor, then the electric current, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है that is the dq upon dt, so that is the instantaneous current. ये क्या होता है, instantaneous, कि any instant of time पर how many charges are flowing, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितने चार्जेस कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहे हैं, दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट. ओके, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट व्हेन द चार्ज इज गिवन इन द वेरिएबल. क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, if q is equal to 4t square is flowing at t is equal to 2 seconds, find करंट. क्या दिया है हमें कि चार्ज तो दिया है वेरिएबल में, टाइम का वेरिएबल है. चार्ज इज इक्वल टू 4t स्क्वायर इज फ्लोइंग एट 2 सेकेंड्स. व्हाट इज द करंट, उस कंडीशन में करंट क्या होगा, तो करंट होगा d बाय dt 4q स्क्वायर. सो 4d अपॉन dt q स्क्वायर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा. ओके, t स्क्वायर डिफरेंशिएट, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू टी, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, दैट इज द x की पावर n dx. जनरल फॉर्मूला है ये, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, n plus 1 n plus 1. so integration x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1.
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इजीली पुट t इज इक्वल टू 2 seconds. So I is equal to 4 into 2 into 2, 16 ampere. So the amount of current which is flowing through the conductor at 2 seconds is 16 ampere. हमें पता चल गया कि 16 एम्पियर करंट क्या होगा, फ्लो होगा. ओके, so that is the instantaneous current. At any small interval of time, a small charge is flowing dq, so the current is dq upon dt. It is for a continuous distribution. Okay, चलो लिख लिया, लिख ले इसे. ओके, नेक्स्ट इज हम बात करें करंट फ्लो कैसे होता है. ओके, व्हाट इज अ कंडक्टर. कंडक्टर में करंट क्या कैसे फ्लो होता है. कंडक्टर, कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच allow to flow electric current. जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम कंडक्टर्स कहते हैं. ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज अ कंडक्टर. ये हमारे पास एक कंडक्टर है. वी नो दैट इन एनी कंडक्टर देयर आर मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टर में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती है, सो दिस इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं. ओके, दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एनी डायरेक्शन. ओके, सो दे मूव in any direction without electric field. Firstly, in a conductor there are so many number of free electrons. इसमें free electrons बहुत सारे होते हैं, ठीक है. बट ये थर्मल मोशन की वजह से हर एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं. ओके, और एक दूसरे से टकराते हैं. दे कोलाइड each other and in this condition the motion is transferred to the another electron, but the overall motion is equal to 0. यहाँ पर क्या होता है, उनका जो थर्मल मोशन होता है ये क्या होता है, 0 होता है. ओवरऑल मोशन इज इक्वल टू 0. ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो the rate of flow electron in definite direction is 0. Flow of electron in definite direction is 0. इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है. इन थर्मल मोशन, जब यहाँ पर थर्मल एनर्जी होती है इससे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और ये क्या करते हैं, मूव करते हैं. ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, आयन से टकराते हैं, बट इट कैन नॉट मूव इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. बट व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, या हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. ओके, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे. आफ्टर अप्लाइंग electric field, electrons move in particular
direction, or we can say that it moves in the opposite direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, एंड उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहते हैं. ओके, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, देयर आर सो मेनी फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक दूसरे से कोलाइड होते हैं बट कैन नॉट मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. When the electric field is applied, means the presence of electric fields, the electrons move in a particular direction and that condition is known as a electric current. उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग. पढ़ते रहें और बढ़ते रहें.